morning, dear students. Dear students, in the previous class, we have discussed about the vaccination and immunization. We have said that what are vaccines? Vaccines are those substances, or you can say attenuated pathogens or bacteria or their parts, which after entering into the body induces the formation of the antibody. So such substances were known as vaccines. Now we are moving on to the next very important topic of the chapter, which is the disorders associated with our immune system. Right? जैसे हमारी कोई भी दूसरी organ system में damage होता है, वैसे ही ऐसे भी disorders होते हैं जहाँ पे हमारी immune system ही damage होने लगती है या affected रहती है for a short period of time or maybe for a long period of time. Such disorders of immune system mainly include allergies, it includes autoimmune diseases, and third, it also is responsible, that is, it also includes the diseases which will be immunodeficiency diseases. मतलब 3 तरह के disorders हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं. एक होती है allergic reactions, दूसरे होते हैं autoimmune diseases, and the third one which we are going to talk is the diseases which are immunodeficiency diseases, जैसे कि AIDS. उसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एलर्जीज. सो फर्स्ट डिसऑर्डर, allergy. Now what is allergy? Allergy is a hypersensitive response to an antigen or a foreign substance which has entered in your body or the individual might have came in contact of. Okay, so allergy is, it is the hypersensitive response to an foreign antigen that has entered the body. So when we use the word allergy, allergy मतलब एक hypersensitive response है. Hypersensitive मतलब एक exaggerated, एक ज़्यादा ही कुछ response दिया जाता है to certain antigens or to certain foreign substances, either when they come in the contact of our body or else when they enter into our body, and this exaggerated response is known as allergy. The allergy is mainly caused by the agents, and these agents are known as allergens. Okay, so next we will use the word allergens. Allergens are the substances that cause the allergy. जिन substances की वजह से allergy होती है उन substances को allergens कहा जाता है. अब ये जो allergens की हम बात कर रहे हैं इनमें क्या include हो सकता है? तो allergens commonly include dust, pollens, mold, it can be some bacteria, it can be some animal fur, okay, it can be some perfume, anything. एलर्जन कोई भी सब्सटेंस हो सकता है. पोलन्स है, डस्ट है, मोल्ड्स, बैक्टीरिया, एनिमल फर, परफ्यूम्स, इवन लिपस्टिक्स, केमिकल्स, ये सारी ही चीजें एलर्जेंस में इंक्लूड होती है. राइट? एवरी पर्सन इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड द सेम टू दैट एलर्जन. You are responding to that allergen in a specific way just because you are hypersensitive to that particular allergen, and therefore you are responding in a different way. What are the common symptoms when an allergy happens? So symptoms, what is commonly observed, so allergies mainly they are going to affect your skin and the mucous membrane. Okay, so mainly it affects
skin and mucous membrane or you can say mucous lining. एक तो स्किन अफेक्ट हो जाती है और स्किन के साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन भी अफेक्ट हो जाती है. तो म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पे? तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन where the allergy or where the response is going to be observed, and therefore the symptoms will be watery eyes, running nose, right, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सारे बहुत कॉमन सिम्टम्स है. आईज में से पानी निकलना, नोज ब्लॉक हो जाना या तो रनिंग नोज हो जाना, राइट, दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स विच आर ऑब्जर्व्ड इन द एनी टाइप ऑफ एलर्जी. नाउ if we talk about that how the allergy is or what is responsible for the allergies to occur, so responsible factor for the allergy is the antibody IgE. And along with this antibody IgE, there will be release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cells. So, antibody or you can say immunoglobulin that is mainly increased during allergy is IgE, and the chemicals like histamine and serotonin from mast cells. These are the main agents which are going to increase during any type of allergy. कई इंडिविजुअल्स में IgE का अमाउंट ऑलरेडी ज्यादा होता है, ये जेनेटिक भी होता है, दैट इज इट इज एंटीजेनिक टेंडेंसी और एलर्जिक टेंडेंसी जो है यहाँ पे वो मेनली किसकी वजह से होती है? द एलर्जिक टेंडेंसी इज ड्यू टू द passed on from parents to the offsprings, and these individuals have more amount of IgE in their body. Okay, so the allergic tendency passes from parents to the offsprings. मतलब ये इंडिविजुअल्स जो होते हैं उन्हें ऐसा भी होता है कि अगर पेरेंट्स को एलर्जी कोई स्पेसिफिक है तो मे बी उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको भी कोई स्पेसिफिक एलर्जी हो सकती है. तो एलर्जिक रिएक्शंस में एक चीज फिक्स्ड है कि आईजीई एंटीबॉडी का अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है और प्लस हिस्टामाइन और सेरोटोनिन का लेवल भी बहुत ही ज्यादा होता है. यहाँ पे सबसे कॉमनली जो होता है वो है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स बहुत ही ज्यादा डायलेट हो जाने की वजह से उनके अंदर जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, राइट, उसमें से जो टिश्यू फ्लूइड्स है दैट इज गोइंग टू ooze out, that is going to come out, and therefore it can happen that blood pressure level can also reduce in the case of severe allergic conditions. Okay, so that are different effects of once the allergy has happened. What are the symptoms? Here also the response is same. पहली बार जब एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर होता है तो एक प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है. फर्स्ट टाइम व्हेन द बॉडी faces the allergen, the response is a primary response and it does not cause any symptoms. मतलब एलर्जी के कोई symptoms देखने को नहीं मिलते. But second time, when the same antigen enters into the body, there will be increased amount of IgE antibody. दूसरी बार जब ये एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर होता है तो ये एंटीबॉडी का अमाउंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और उसी की वजह से हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जैसे सब्सटेंसेस भी रिलीज होते हैं. सो दैट इज फाउंड ओवरऑल इन एनी एलर्जिक रिएक्शन. अगर हम एलर्जीज की बात करें तो एलर्जीज में कौन से डिसीज इंक्लूड होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ डिसीज दैट वी कैन कंसिडर इज हे फीवर. ओके, वैसे तो कई सारे डिसीजेस होते हैं. हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू डिसीजेस जो हम एलर्जी में कंसिडर करते हैं. हे फीवर. The hay fever occurs due to the pollens from the grasses or other plants. Okay, so it is due to pollens
from grasses or other plants, and it can be treated by using एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर तो जो हिस्टामाइन का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और हिस्टामाइन के ट्रीटमेंट में मेडिसिन दिया जाता है जो होता है एंटीहिस्टामाइन। मतलब यहाँ पे अगर ब्लड वेसल्स बहुत डायलेट हो गई है, कैपिलरीज बहुत डायलेट हो रही है, तो फ्लूइड्स जो है वो सारे बाहर चले जाएंगे इनटू द टिश्यूज। ऐसा ना हो इसीलिए वापस से कंस्ट्रिक्ट करने के लिए एंटीहिस्टामाइन्स आर द मेडिसिन्स व्हिच कैन बी यूज्ड। Hay fever is having very common symptoms like sneezing, running nose, watery eyes. Okay, so there can be pain in the throat or difficulty in breathing for some time. All these symptoms are going to be common for the disease like hay fever. हे फीवर जो है वो एलर्जन की वजह से होता है, और वो एलर्जन है पोलन्स जो कोई ना कोई प्लांट्स या ट्रीज में से रिलीज हुए हैं, राइट। और दूसरी चीज ये है कि ट्रीटमेंट में यहाँ पे ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इसीलिए ट्रीटमेंट में एंटीहिस्टामाइन दिया जाता है, और एंटीहिस्टामाइन देने के बाद a person can again feel relieved. Okay, the symptoms are sneezing, or you can say coughing, sneezing, running nose, watery eyes, difficulty in breathing are some of the common symptoms associated with the hay fever. Second such important allergic disorder which we can observe is the asthma. बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है ये डिसीज अस्थमा, और यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रोंकियोल्स है लंग्स में उनके आसपास के टिश्यूज जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। ओके, सो टिश्यूज सराउंडिंग द bronchioles swell. As a result, bronchioles get constricted. This disease is going to mainly affect the lungs. यहाँ पे क्या होने वाला है कि ब्रोंकियोल्स के आसपास जो टिश्यू है वो स्वेल हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम एलर्जन। दिस एलर्जन कैन बी डस्ट, इट कैन बी अ पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस, इट कैन बी एनिमल फॉर एनीथिंग, ठीक है। तो उसकी वजह से ब्रोंकियोल्स के आसपास के टिश्यू स्वेल हो जाते हैं। अब जब वो टिश्यू स्वेल हो चुके हैं तो उसके लिए क्या होगा कि जो बीच में जो ब्रोंकियोल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा थिन और डेलिकेट है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब जब ब्रोंकियोल्स ही कंस्ट्रिक्ट हो गई है तो पैसेज ऑफ एयर विल बी decrease and therefore the person will be feeling difficulty in breathing will be observed, क्योंकि ब्रोंकियोल्स जो है उनका पाथवे रिड्यूस हो गया है, बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है, नैरो हो चुकी है, और नैरो हो जाने की वजह से ब्रीथिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे हिस्टामाइन का रोल नहीं है, इंस्टेड ब्रोंकोडाइलेटर्स यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। ओके, ब्रोंकोडाइलेटर्स, क्योंकि टिश्यू स्वेल हो जाने में हिस्टामाइन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसलिए एंटीहिस्टामाइन से ट्रीटमेंट नहीं होती। दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें कहते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स, और उनके साथ साथ कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज होते हैं, और इन दोनों के हेल्प से वापस वो जो ब्रोंकियोल्स हैं उन्हें वाइडन किया जाता है so that it can induce a easy passage of the air. These bronchodilators are available in the form of aerosol droplets also, as well as they are available in the form of dry form which has to be inhaled. Okay, so asthma is one such more allergic disorder. The third disorder that we can talk about is anaphylactic shock. Now anaphylactic shock is one of the most severe allergy because it can even lead to death of the person.
It mainly affects all tissues of the body. Affects all tissues of the body. यहाँ पे blood vessels and the capillaries dilate. यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज जो है वो डायलेट हो जाती है, इसीलिए अ लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज गोइंग टू फ्लो आउट इनटू, और द प्लाज्मा इज गोइंग टू फ्लो आउट इनटू द टिश्यूज. ओके, सो प्लाज्मा फ्लोज आउट इन द टिश्यूज. अब जब प्लाज्मा फ्लो आउट हो जाता है, देयरफॉर ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज. राइट, यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, एनाफाइलैक्टिक शॉक एक ऐसी एलर्जी है जो बॉडी के हर एक टिश्यू को अफेक्ट करती है. यहाँ पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट हुए हर एक ब्लड वेसल और कैपिलरी डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड्स जो हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स में से बाहर टिश्यू फ्लूइड में आ जाते हैं. जब वो टिश्यूज के बीच में आ जाते हैं तो यहाँ पे ब्लड के वेसल के अंदर जो ब्लड है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. ब्लड वॉल्यूम कम हो जाने की वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, और कई बार ये ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता है दैट इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन ऑल्सो. यहाँ पे पर्सन का डेथ भी हो सकता है अगर ऐसी कोई सीवियर एलर्जन आ गया है कॉन्टैक्ट में तो. इसीलिए इन केसेस में एलर्जीज बहुत ही ज्यादा सीवियर होती है और ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट होती है. इसीलिए अगर किसी को एलर्जिक रिएजेंट के बारे में या कोई एलर्जन के बारे में पता हो तो उसे ऑब्वियसली उनसे दूर रहना चाहिए, अदरवाइज इट कैन लीड टू सच सीवियर प्रॉब्लम्स ऑल्सो. So that was about the first disorder of immune system that we have talked about is allergy. Allergies में हमने एलर्जी क्या है देखा, एलर्जेंस क्या है, क्या सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है एलर्जी के लिए उसके बारे में बात की. We have talked about 3 different allergies: hay fever, asthma and anaphylactic shock. In the next class we will talk about autoimmune diseases and immunodeficiency disorders like SCID and AIDS.